آپ کے بقول خود یہ ایک فروئی مسئلہ ہے۔ یہ جو صاحب ہیں یہ دماغی طور پہ پاگل ہیں۔ 10 سال کا عرصہ دینی تعلیم حاصل کی، بعد میں ان کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل خانے میں داخل کروایا، چھترول بھی کی، انہوں نے چھتر پھیر پھیر کے میرا دماغ درست کر لیا۔ تو اگر ان کی بات کو صرف کہہ دینا، اگر پوری اہل سنت والجماعت کا مسلمہ اگر نظریہ اور عقیدہ بن جاتا ہے اور مسئلہ بن جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے الکوحل کے عدم جواز پہ فتویٰ دیا، اسپیکر بھی استعمال کرتے ہیں، تصویر بھی بناتے ہیں، کیونکہ پہلے جن کے یہ نام لے رہے ہیں ان میں سے بہت سارے شرارتی گئے تھے وہاں پر سوائے بدتمیزی اور صرف ایک ہی رٹ لگانا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلمان نظریہ، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بات نہیں تھی۔ حضور غوث اعظم جو ہیں، آپ ان کی غوثیت الکبریٰ مطلقہ کے قائل ہیں یا آپ مطلق الغوثیت کبریٰ کے قائل ہیں؟ حضور غوث اعظم کی افضلیت و غوثیت کبریٰ دائمہ کا سلب عموم کیا ہے یا السلب العموم کیا ہے؟ پہلے شاہ صاحب کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور بڑے افسوس کی بات بھی ہے وہ بھی سنیں۔ کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو کارروائی ہی کہوں گا، ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ کریں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ سرکار بغداد تمام اولیاء کرام سے افضل ہے۔ یہ نہ ہی ضروریات دین کا مسئلہ ہے اور نہ ہی یہ عقیدہ اہل سنت کا مسئلہ ہے، یہ ایک عقیدت کا مسئلہ ہے اور محبت کا مسئلہ ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ مسلمہ مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے الحمدللہ یہ مسئلہ ابتدا سے ہی صوفیہ کرام کے ہاں، اہل سنت کے ہاں تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ حضور والی بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کرام سے قیامت تک امام محمد مہدی کے آنے تک اور امام حسن عسکری کے بعد قیامت تک کے تمام اولیاء کرام سے افضل ہے اور غوث الاغواث ہے۔ غوثیت کبریٰ کا جو صحرا ہے وہ آپ کے سر پر سجا ہوا ہے، جہاں سے جس تھالی سے کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ان کو استثناء مستثنیٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، نہ کوئی حدیث کی دلیل، نہ کوئی قرآن کی دلیل، نہ کوئی صوفیہ کی دلیل۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو شرم نہیں ہے یہ بات دیکھتے ہوئے؟ ہم آپ کو اس پر دعوت مکالمہ بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر مکالمہ کریں، ہم حاضر ہیں، لیکن کراچی، میرا مسکن کراچی ہے، میں حاضر ہو جاؤں گا، یا آپ ہمیں بلائیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ آپ کو یہ بات لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب دیکھیں یہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا شاہ صاحب آپ ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لیے یہ زیب نہیں تھا کہ آپ اس قسم کے سخت الفاظات کا استعمال کرتے۔ آپ کا وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے یزیدیوں کے خلاف بھی کبھی ناروا سلوک کا نہیں سوچا اور تلخ اور سخت جملوں کا استعمال نہیں کیا۔ یہ تو ایک آپ کے بقول خود یہ ایک فروئی مسئلہ ہے، کوئی عقائد اسلام یا عقائد اہل سنت سے یا فرض واجب حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، صرف ذوق شوق اور محبت اور عقیدت کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے آئندہ احتیاط فرمائیے گا۔ لیکن ان کی ایک بہت اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ کراچی میں رہتا ہوں میں خود جا کر ملوں گا، اور یا اگر انہوں نے بلایا شیخ طریقت نے، فقیہ العصر نے، مہتاب قادریت و رضویت ڈاکٹر ابو بکر صدیق شاذلی دامت برکاتہم العالیہ نے اگر بلایا تو میں جاؤں گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ضرور جانا ہے اور اپنے ساتھ کسی سنجیدہ شخص کو لے کے جائیے گا جو حق کا طالب ہو، جو حق کو سنے سمجھے اور اس کو تھامنے والا ہو۔ شرارتی آدمی کو ساتھ نہ لے کے جائیے گا جو صرف مجادلہ اور مکابرہ کا ہی قائل ہو۔ تو اب اس کے بعد ان صاحب کی بھی ذرا سنیں اور ان کی دماغی حالت کا بھی اندازہ لگائیں، اس پہ تبصرہ میں بعد میں کروں گا۔ سنت و جماعت کا یہ مسلمہ نظریہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مہدی کی تشریف آوری تک حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہے، اور غوث زمانہ کو آپ ہی کی بارگاہ سے غوثیت عطا ہوتی ہے، اور حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر غوث اعظم غوثوں کے غوث ہیں۔ سنیں، یہ حضور غوث پاک کو افضل الاولیاء بھی نہیں مانتے، یہ کہ اپنے چند مرید جمع کرنے کے لیے جنہوں نے کچھ دینا نہیں۔ سن لو، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے کہ ابو بکر شاذلی اور ان کے ہم نوا یہ اس حوث خام میں مبتلا جو نالائق شاذلیوں کا رد بھی کرو۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو صاحب ہیں یہ دماغی طور پہ پاگل ہیں، اور یہ دیکھیں اپنے استاد کے متعلق ڈاکٹر ابو بکر صدیق شاذلی فقیہ العصر مہتاب قادریت و رضویت جناب شیخ محترم جو ہیں، ان کے پاس انہوں نے 10 سال کا عرصہ دینی تعلیم حاصل کی ہے اور شروع سے لے کے آخر تک کی انہی کی صحبت میں رہ کے یہ مفتی بھی بنے ہیں۔ بعد میں ان کا دماغ خراب ہو گیا، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیے گا، حقیقت میں یہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، اور استاد محترم نے ان پر شفقت کی اور خود جا کر ان کو پاگل خانے میں داخل کروایا اور وہاں پر ان کی مختلف طریقوں سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کی اور اس کے اندر ان کی چھترول بھی کی۔ کبھی یہ نائب غوث اعظم کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، میں وہ سارے
दावों का जिक्र नहीं करना चाहता, एक नया मसला, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इन्होंने बड़े बड़े दावे शुरू कर दिए थे, इनका दिमाग ख़राब हो गया। 2-4 महीने ये अंदर और रहते तो इस किस्म की गलीज़ ज़ुबान ये अपने उस्ताद के मतलब नहीं इस्तेमाल करते। कभी ये कह रहे हैं कि इनको शर्म आनी चाहिए, ये नालायक हैं, हैं जी, और आपने सारा क्लिप के अंदर इनकी बकवासियात को सुना, और इनके पास इल्म की कोई बात नहीं है ना। ये तीनों हजरात की मैं आपको बात सुना देता हूँ। इनके बयान से लगता है इन्होंने पूरी किताब ही नहीं पढ़ी। तो लिहाजा ये एक उस्ताद के ख़िलाफ़ जो शख्स ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे, हालांकि ये ख़ुद को रज़वी कहते हैं, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने फ़तावा रज़विया के अंदर फरमाया है कि उस्ताद का हक़, शेख का हक़ माँ बाप से भी ज़्यादा है। आप क्या ये सोच सकते हैं कि अपने माँ बाप के लिए भी ये अल्फाज इस्तेमाल करें? अगर करें लोग इनको जूते मारेंगे। बहरहाल ये तो पागल हैं, दिमागी तौर पर खिसके हुए, इनकी बात का तो बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। अब ये तीसरे साहब की भी आप बात सुनें। शाज़ली को गौसे आज़म से बुलंदोबाला साबित किया जाए। तमाम सलासिल के जमहूर उलमा और औलिया अल्लाह इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इमाम मेहदी की आमद तक, यानी इमाम हसन अस्करी के बाद से इमाम महदी की आमद तक हुजूर गौसे आज़म गौसियत कुबरा के इस अजीम मनसब पर फाइज हैं और रहेंगे। और तो वो गौस हैं, गौसे आज़म नहीं है। गौसे आज़म और बात के भी गौसे आज़म यूं समझ लें कि तमाम औलिया इनके मातहत हैं। अब इन तीनों साहब जो हैं जिन्होंने यहाँ पर गौसुल अगवास जो किताब फ़कीहुल असर शेख तरीक़त महताब कादरियत व रज़वियत ने जो लिखी है, उसके ऊपर जो इनके एतराज़ात, पूरी वीडियो मैं नहीं चला सकता, बहुत लंबा कलाम हो जाएगा, मैं उनका खुलासा ये बयान कर देता हूँ। नंबर 1, इन्होंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात का मुसल्लमा मसला व नज़रिया है और इब्तदा से ही तमाम औलिया और उलमाए किराम व इज़ाम का नज़रिया है। यानी इन्होंने मूजबा, कुल्लिया, दायमा, ज़रूरिया का इस्तेमाल किया है। इनका दावा जो है वो ये है कि हजूर गौसे आज़म जो हैं वो हज़रत इमाम हसन अस्करी से लेकर हज़रत इमाम महदी तक आने वाले जितने भी औलिया किराम हैं उनके गौसे आज़म हैं, उनके गौसुल अगवास हैं, और उनके अलावा कोई और बीच में ना गौसे आज़म आया है ना गौसुल अगवास आया है। मैं मज़ीद आगे वजाहत करूँगा। लिहाजा इन्होंने मूजबा, कुलिया, दायमा, ज़रूरिया का दावा किया है, और इनके जो मैं चंद नुकात इनके तीनों के बयानात से जो हासिल हुए हैं वो बयान करता हूँ। एक तो इनका कहना यह है कि तमाम औलिया से हजूर गौसे आज़म अफजल हैं। दूसरा, सिर्फ़ वही गौसे आज़म हैं। तीसरा, गौसियत कुबरा पर सिर्फ़ वही फ़ायज़ हैं। गौसुल अगवास सिर्फ़ हजूर गौसे आज़म हैं। गौसे ज़माना को आपकी बारगाह से गौसियत मिलती है, यानी किसी और से गौसियत नहीं मिलती। क़यामत तक तमाम गौसों के गौस हैं, और ये हसरे कुल्ली इन्होंने बयान किया है। लिहाजा ये 5 इनके दावे हैं, और 3 ये एतराज़ात करते हैं। नंबर 1, हज़रत इमाम शाज़ली का शाह साहब कहते हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म की गौसियत की जो है उससे इस्तिस्ना साबित किया है। नंबर 3, इन्होंने कहा कि बग़ैर दलील के ना कुरान से दलील दी, ना हदीस से दलील दी, और ना ही औलिया के अक़वाल से दलील दी, यानी कोई नकल पेश नहीं की। फिर ये दूसरे साहब जो हैं जिनका दिमाग ख़राब है, जो पागल खाने से हो गए हैं, वो कहते हैं ये, यानी कि शेख तरीक़त फ़कीहुल असर डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब कहते हैं कि ये जो हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली हैं वो अफ़ज़ल औलिया हैं, और हजूर गौसे आज़म अफ़ज़ल औलिया भी नहीं हैं। और ये तीसरे जो साहब हैं शहज़ाद साहिब, ये एक अच्छे आलिम दीन हैं, ये कहते हैं कि इमाम शाज़ली को गौसे आज़म से शेख तरीक़त ने अफ़ज़ल साबित किया है। तो ये 5 ये जो हैं ये 8 किस्म के जो बातें करते हैं, और इनका मतलब ये है कि शेख तरीक़त ने पहली 5 बातों का हजूर गौसे आज़म की गौसियत के मतलब ये जो 5 बातें हैं इनका इनकार किया है। और इन्होंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात का ये मुसल्लमा नज़रिया और मसला है। तो अब मेरी ये इनसे गुजारिश है, सबसे पहले तो इनसे मेरी अब गुजारिश है कि ये बारी बारी शेख तरीक़त की बारगाह में जाएँ, अपने साथ किसी संजीदा शख्स को लेके जाएं और तन्हा जाएं, यानी 1-2 साथ संजीदा साथी लेके जाएं और उनसे गुफ्तगू करें। ये कोई अकायद का मसला नहीं है, हलाल हराम का मसला नहीं है, कुफ्र इस्लाम एक फ़ुरूई मसला है, इस पे बैठ के गुफ्तगू की जा सकती है, इसके ऊपर मुकालमा हो सकता है जैसा कि शाह साहब ने कहा। और यकीनन हम ये थोड़ी कहते हैं कि डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक़ साहब वो मासूम हैं, उनसे गलती नहीं हो सकता, उनकी किसी बात के अंदर गलती हो, उनकी तवज्जो दिलाई जाए, उनकी भी इस्लाह हो जाए, और अगर जो वो हक़ बयान करे इसको कबूल किया जाए। तो इसके ऊपर मैं ये बात कहूँगा कि पहले जब ये जाएंगे, सबसे पहले तो इन्होंने ये 8 बातों को साबित करना है कि डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक़ साहब ने अपनी किताब के अंदर ये 8 बातें की हैं। नंबर 1 ये साबित करना है, फिर इसके अगर वो ये साबित करेंगे फिर इसके ख़िलाफ़ जो इनका मौक़िफ़ है
उस पे इन्होंने फिर दलाइल भी देने हैं। और दलाइल जो हैं ये क्योंकि इब्तदा ही से तमाम औलिया और उलमा का मसला है और जमहूर आले सुन्नत वल जमात का क्योंकि मुसल्लमा मसला है, लिहाजा पहली, दूसरी, तीसरी सदी यानी जिस सदी में हुज़ूर गौसे आज़म थे, उस सदी, उससे अगली और उससे अगली 3 सदियों के अंदर से इन्होंने साबित करना है कि ये मुसलमा क़ीदा है। अगर सिर्फ आप आला हज़रत की बयान करदा बात को आप मुसलमा कहेंगे तो आला हज़रत ने तो पंखे के अदम जवाज़ का फ़तवा दिया, अल्कोहल के भी अदम जवाज़ का फ़तवा दिया। और आप आज इस वक्त ये सारे लोग जो हैं ये पंखा छोड़कर एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि घरों को छोड़कर खानकाहों और मसाजिद तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यानी सिर्फ अगर आला हज़रत की बात कर देना ये आले सुन्नत वल जमात का अगर मुसलमान नज़रिया बन जाता है तो आला हज़रत का नज़रिया ये है कि पंखा जो है इसके नीचे बैठना या इसे लगाना जायज़ नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का अगर कहा हुआ पूरी उम्मत मुसलमा का आले सुन्नत वल जमात का मुसलमा अगर नज़रिया है तो आप फरमाते हैं कि औरतों और बच्चियों को लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए। और ये लोग मदारिस छोड़कर स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अपनी बच्चियों को भेजते हैं और उनके मदारिस और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बच्चियों और ख़वातीन के बनाने के जवाज़ के ये कायल हैं। आला हज़रत ने तो अगर उनकी बात को सिर्फ कह देना, अगर पूरी आले सुन्नत वल जमात का मुसलमा अगर नज़रिया और अकीदा बन जाता है और मसला बन जाता है तो आला हज़रत ने अल्कोहल के अदम जवाज़ पे फतवा दिया। ये रंगों के अंदर अल्कोहल के, परफ्यूम के अंदर अल्कोहलों के, मेडिसन्स होम्योपैथिक हों एलोपैथिक हों उनके अंदर अल्कोहल के जवाज़ के कायल हैं। लिहाजा से कहने का मतलब यह है सिर्फ आला हज़रत या चंद बुजुर्गान दीन अगर किसी बात को बयान करें तो वो अहले सुन्नत वल जमात का मुसलमा नज़रिया व अकीदा नहीं होता। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जितने भी हज़रात हैं या इनके अलावा भी अगर कुछ हैं जिनको इस किताब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डॉक्टर अबू बकर साहब की खिदमत में जाएं, उनसे फ़ोन पर रब्ता करें, उनके घर तशरीफ़ ले जाएं। वो आपको टाइम देंगे, नहीं देंगे तो आप मुझे कहें, मैं डॉक्टर साहब के घर के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाऊंगा कि इन्होंने इनको टाइम नहीं दिया। तो आप लोग उनके पास जाएं, लेकिन साथ संजीदा शख्स को लेके जाएं, शरारती को नहीं लेके जाना, क्योंकि पहले जिनके ये नाम ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे शरारती गए थे वहाँ पर सवाए बदतमीज़ी करने के अलावा और सिर्फ एक ही रट लगाना कि ये अहले सुन्नत वल जमात का मुसलमान नज़रिया, इसके अलावा इनके पास कोई और बात नहीं थी। जबकि डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ये जो बातें आप कर रहे हैं ये मेरे ऊपर बहतान लगाई जा रही हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की और मैंने खुद भी इस किस्म के सवालात डॉक्टर साहब से किए हैं और किताब पूरी का मुताला किया, मुझे तो उसके अंदर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। बहरहाल आप मुकालमा करें या मुनाजरा करें तो इसके लिए चंद बातें ज़रूरी होंगी। नंबर 1, जो भी जाके मुकालमा या मुनाजरा करना चाहता है उसके लिए लाजिम होगा कि ये पूरी किताब का मुताला करके जाएं, उसके अंदर हाईलाइट अपने जो इनको तहफ़्फ़ुज़ात है उसे हाईलाइट करें, उसके ऊपर निशानात लगाएं और बाइंडिंग करके लेके जाएं ताकि मौके पे जाकर वक्त ज़ाया ना हो। और अपने जो पहली 3 जिस हुज़ूर गौसे आज़म जिस सदी में थे, उससे अगली सदी और अगली सदी 3 सदियों के अंदर से आपने पूरे हवाला जात साथ लेके जाने हैं, जिससे आपने ये साबित करना है कि ये सारी बातें उम्मत मुसलमा का मुसलमा मसला व नज़रिया है। ये सारे दलाइल आपने लेके जाने हैं। सिर्फ एतराज़ ही करना काफ़ी नहीं होता, पहले आपने अपने एतराज़ात साबित करने हैं, फिर अपने हक़ में आपने दलाइल भी देने हैं और साथ दूसरी बात वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग होगी और पूरी बात की रिकॉर्डिंग होगी। और अगर आप जो बंदा गड़बड़ करेगा उसकी रिकॉर्डिंग को पूरा चलाया जाएगा ताकि मौके के ऊपर सबूत हो। ये ना हो आप लोग जाएं गाली गलोच और सिर्फ एक ही रट लगा के जी मुसलमान से, इस तरह बात नहीं चलेगी। आपको दलाइल देने होंगे और पहले अपने एतराज़ात को साबित करना होगा। और तीसरी बात ये होगी कि अगर आपके सामने जो हक़ वाज़िया होगा वो आके बाहर आपने पूरी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को बताना है कि डॉक्टर मैंने ये कहा और डॉक्टर साहब ने ये कहा, मैं मुतमिन हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। और चौथी और अहम बात यह है कि इससे पहले आपने 2 बातें क्लियर करनी हैं, क्योंकि अगर ये 2 बातें क्लियर नहीं करेंगे ना आपको मसला समझ में आएगा, सारी रात बातों में बासा करते रहेंगे। आपको जब एक चीज़ की हकीकत ही नहीं पता तो आप उसके ऊपर गुफ्तगू क्या करेंगे। लिहाजा सबसे पहले आपसे ये सवाल किया जाएगा कि हुज़ूर गौसे आज़म जो हैं आप उनकी गौसियतुल कुबरा मुतलका के कायल हैं या आप मुतलकुल गौसियत कुबरा के कायल हैं। ठीक है जी, इन 2 बातों में से एक, दोनों की तारीफ भी आपने करनी है और वजाहत भी करनी है कि मुतलकुल गौसियतुल कुबरा के आप कायल हैं या अल गौसियतुल कुबरा मुतलका के आप कायल हैं। नंबर 2, आपने ये बताना है ये जो आपने एतराज़ात किए हैं इसका जवाब आपने इस तरीके से देना है कि शेख मोहतरम ने हुज़ूर गौसे आज़म की अफजलियत व गौसियत कुबरा
دائمہ کا سلب عموم کیا ہے یا السلب العموم کیا ہے، یہ باتیں آپ نے بتانی ہیں۔ باقی جو انہوں نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ، یہ میں ان شرارتی لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہیں، اسلم رضا اور اس طرح کے اور لوگ جو پیچھے سے شرارتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو مواد مہیا کر رہے ہیں، لوگوں کو مواد، انہوں نے کتاب نہیں پوری پڑھی، یہ لوگوں کو مواد اور جھوٹ بیان کرتے ہیں، جھوٹے نوٹس بنا کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے شیخ محترم کے متعلق نظریات کے اندر خلل آئے اور وہ ان کی کردار کشی کر سکیں۔ میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، وگرنہ میں علمی طور پہ آپ کا ایسا محاسبہ کروں گا کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور ہر دنیا کہے گی کہ یہ رضا کے ریزے کی مار ہے، ادو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔